میرا رنگ بہت زیادہ کالا تھا اور میری دوسری بہنیں بہت خوبصورت تھی۔ کوئی بھی رشتہ آتا تو میرے کالے رنگ کی وجہ سے انکار کر دیتے۔ ایک دن ایک آنٹی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تو میں نے غصے سے ان کو گھر سے نکال دیا، لیکن اگلے دن جب وہ دوبارہ رشتہ لے کر آئیں تو اس کے ہاتھ میں جو دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو… عائشہ نے تھک ہار کر کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ ایک پرسکون نیند لینا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں مسلسل جنگ جاری تھی۔ اس کا ذہن مسلسل شام کو گھر آئی خواتین کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اس گرداب سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسے ابھی کل کے لیکچر کی تیاری بھی کرنی تھی، لیکن اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ ان دل دکھا دینے والی باتوں کو بھول جائے، لیکن اس کا دل ان باتوں کو بھلانے پر ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ عائشہ کچھ دیر آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور غور سے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی جھالر تھی، ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، متناسب سراپا اور پشت پر لہراتے گھنے سیاہ بال۔ اس کے چہرے پر کشش اور ملاحت تھی۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا۔ اس کے نین نقش اس کے خوبصورت ہونے کی گواہی دے رہے تھے، لیکن اس معاشرے کے لوگوں کی خوبصورتی معیار الگ تھا۔ ان لوگوں کی خوبصورت ہونے کی پہلی شرط رنگ گورا ہونا تھا، اور یہیں پر آ کر عائشہ کمال احمد مات کھا جاتی تھی۔ اس کا رنگ ہلکا سانولا تھا جو اس کی ساری خوبصورتی کو ملیا میٹ کر دیتا تھا۔ اسی رنگ کی وجہ سے اسے کئی بار ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عائشہ کمال احمد اپنے کالج کی بہترین اسٹوڈنٹ، ہمیشہ کالج کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی اور کامیاب ہونے والی لڑکی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر اسے اپنے سانولے رنگ کی وجہ سے اتنی تذلیل برداشت کرنا پڑے گی۔ ہمیشہ سر اٹھا کر جینے والی لڑکی کو اس طرح بار بار ریجیکشن کا دکھ برداشت کرنا پڑے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ سانولی ہے، باقی لوگوں کی طرح اس کا رنگ گورا نہیں۔ آخر سبھی لوگوں کو گوری لڑکی ہی کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کیا سانولے رنگ کے لوگوں پر زندگی کی خوشیوں کا کوئی حق نہیں؟ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے خود سے سوال کیا۔ چند پل آنسو بھری آنکھوں سے آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھتی رہی۔ ضبط کا بندھن بے اختیار ٹوٹ گیا اور وہ اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے کب کا رکا ہوا سیلاب تھا جو آنسوؤں کی صورت میں اس وقت اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ عائشہ اس وقت معمول کے مطابق کالج میں تھی۔ اس کا پیریڈ فری تھا۔ وہ اس وقت ریسٹ روم میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کمال احمد کے انتقال کو 7 سال کے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن عائشہ کو یوں لگتا تھا کہ ابھی کل کی بات ہو۔ وہ کسی بھی طرح اپنی باپ کی ناگہانی موت کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ اس کے شوق کے پیش نظر کمال احمد نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ کمال احمد کی بے پناہ محنت کا نتیجہ تھا کہ وہ آج اس مقام پر تھی۔ ایک صبح معمول کے مطابق کمال احمد آفس جانے کے لیے گھر سے نکلے اور واپس کمال احمد کا جنازہ آیا۔ اس دن سے عائشہ احمد یکسر تبدیل ہو گئی۔ اپنی بہنوں میں بڑی تھی، ایک دم سے احساس ذمہ داری جاگ گیا۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی اس نے جاب کے لیے دوڑ و دھوپ شروع کر دی اور آخرکار کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن زندگی کے اس موڑ پر آ کر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ناکارہ شے ہو جس کی کسی کی بھی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ عائشہ اتنی خاموش اور بوجھی بوجھی کیوں لگ رہی ہو؟ اپنی دوست کی آواز سن کر اس نے جلدی سے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کر دیا۔ نہیں یار۔ سائمہ کی بات پر وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ کل کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے، کیا بات بنی؟ سائمہ کی بات پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ ہر لڑکے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو اور رنگ گورا ہو، اور میرے پاس ان دونوں کی چیزوں کی شدید کمی ہے۔ وہ پسمردہ لہجے میں گویا ہوئی۔
आयशा, तुम अफसुर्दा मत हो, साइमा उसके शाने पर हाथ रखती हुई बोली। हाय दोस्तों, मुंह मीठा करो। उसकी बात बीच में रह गई कि निम्रा मिठाई का डब्बा उन लोगों की तरफ बढ़ाती हुई बोली। किस खुशी में मुंह मीठा करवा रही हो? मेरी मंगनी हो गई है? साइमा के पूछने पर वो जल्दी से अपने हाथ में मौजूद अंगूठी दिखाती हुई बोली। मुबारक हो बहुत बहुत। आयशा ने मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दी। आयशा यार, अब तुम भी अपनी मंगनी की मिठाई खिला दो, आखिर कब तक इंतजार करवाओगी? एक एक करके सबकी मंगनी हो गई है। अपनी कुलीग महविश की बात सुनकर उसके मुस्कुराते लब सिकुड़ गए और उसे कल की जिल्लत याद आ गई। अब भी तो निम्रा की मंगनी की मिठाई खाओ, आयशा भी मिठाई खिला देगी। उसका उतरा चेहरा देखकर साइमा जल्दी से बोली, मैं जानती हूँ यार, तुम्हारा रंग गोरा नहीं है, वो हमदर्दी से गोया हुई। तुम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? इतनी फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में मिलती हैं, कोई इस्तेमाल करो ना। उसके मशवरे पर आयशा ने शाकी नजरों से उसे देखा। महविश, जिंदगी में शादी करने के अलावा भी बहुत से जरूरी काम हैं। साइमा आयशा का उतरा चेहरा देखकर जल्दी से बोली, लेकिन आयशा खामोशी के साथ कुछ कहे बगैर बाहर आ गई। आयशा, तैयार हो जाओ, कुछ मेहमान आए हैं। अम्मी, आपने फिर से बुला लिया, मना किया था ना मैंने। आयशा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। शाबाश, जिद नहीं करते। अम्मी भी ना हद करती हैं, अभी तो थोड़े दिन पहले होने वाली बेइज्जती का जख्म ताजा है। आयशा ने खुद कलामी की और एक सिंपल ड्रेस उठाकर वॉशरूम में घुस गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने कमरे में दाखिल होकर सलाम किया और एक साइड में पड़े सोफे पर बैठ गई। उसे देखकर सबकी तेज रफ्तारी से चलने वाली जुबानें खामोश हो गई और सबकी तवज्जो उसकी जानिब मरकूज हो गई। बहन, तुमने बताया था कि लड़की का रंग हल्का सा सांवला है, लेकिन ये तो अच्छी खासी काली है और उम्र भी काफी लगती है। एक सनसनाता हुआ तीर उसके दिल में आकर बेवस्त हो गया। कितने साल से जॉब कर रही हो? एक उम्र रसीदा खातून ने सवाल किया। 5 साल, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मुझे तो उम्र भी ज्यादा लग रही है, उम्र रसीदा खातून के साथ बैठी लड़की ने कहा। मेरी उम्र 32 साल है, उसने साफ गोई से जवाब दिया। हमें अपनी लड़की के लिए कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए, उम्र रसीदा खातून कहती हुई खड़ी हो गई। अरे आप बैठे तो सही, स्नोबर जल्दी से बोली। नहीं बहन, माफ करो, स्कीना बुआ ने इतनी तारीफ की थी लड़की की, हम देखने चले आए, लेकिन इसकी तो ना शक्ल है न सूरत। वो नखुवत से बोली। बहन बात तो सुने। स्नोबर उन्हें पुकारती रह गई, लेकिन वो बिना रुके चली गई। अम्मी, आपकी कोशिशें बेकार हैं, प्लीज अब मेरे लिए रिश्ता देखना छोड़ दें और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हारे हाल पर? जेबा की शादी मैंने तुम्हारी जिद पर पहले कर दी, लेकिन मैं अब नहीं सुनूंगी। अम्मी, आपको अच्छा लगता है रोज रोज भांत भांत के लोग आकर आपकी बेटी में कीड़े निकाल कर चले जाते हैं। उसकी बात सुनकर सनोबर खामोश हो गई, लेकिन एक पल के तवक्कुफ के बाद धीमे से बोली, बेटा, ये हर लड़की को बर्दाश्त करना पड़ता है, ये दुनिया की रीत है। नहीं अम्मी, हर लड़की को नहीं, सिर्फ मुझ जैसी लड़कियों को। हमारे मुआशरे में जो लड़की की खूबसूरती का मेयार है, मैं उस पर पूरी नहीं उतरती। अम्मी रहम करे मेरे ऊपर, मुझसे रोज रोज की तस्वीर बर्दाश्त नहीं होती। इतने साल हो गए हैं, मैं तंग आ गई हूँ। वो नम लहजा में कहती हुई वहां से उठकर चली गई, जबकि सनोबर उसे दुख और अफसोस से जाते देखती रह गई। वो अपनी बेटी का दामन खुशियों से भरना चाहती थी, लेकिन ये दुनिया एक नया कांटा चबो देती थी। मैं आयशा के लिए एक रिश्ता लाई हूँ, लेकिन रिश्ता पक्का ही समझो। तुम लोगों की तरफ से हाँ कहने की देर है। किसका रिश्ता लाई है, आप कुछ बताएं तो। स्नोबर ने खुशी खुशी पूछा। मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत अच्छा घराना है, पढ़ा लिखा। मुझसे रिश्ते का तज़किरा किया था, मैंने आयशा की तस्वीर दिखा दी और वो उनको पसंद आ गई। स्कीना बुआ की बातें सुनकर आयशा के बढ़ते कदम रुक गए। वो वहीं रुककर बातें सुनने लगी। लेकिन कुछ पता तो चले, कौन लोग, कैसे लोग हैं? सब पता चल जाएगा, बस ये बताओ उनको घर लेकर कब आऊं? और एक बात और, लड़की की दूसरी शादी है, उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया है और चंद माह का बच्चा भी है। स्कीना बुआ के मुंह से निकले अल्फाज सुनकर आयशा वहीं कुर्सी पर बैठ गई। दूसरी शादी है? नहीं स्कीना बुआ, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगी। अगले ही पल स्नोबर ने साफ इनकार कर दिया। अरे बीबी, मेरी बात मानो, एक बार लड़की की फैमिली से मिल लो, बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे वाले, पढ़े लिखे। नहीं सकीना, मैं यहाँ अपनी आयशा की शादी हरगिज नहीं करूंगी। स्नोबर ने नफी में सर हिलाया। स्नोबर,
तुम्हारी आयशा की शादी का इरादा भी है या बस उसकी कमाई खाते रहना है? क्या कह रही हैं आप स्कीना बुआ? स्नोबर ने हैरत से सवाल किया। अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला कहता है कि स्नोबर को बेटी की कमाई खाने की आदत हो गई है। सबको पता है तुम्हारी लड़की कॉलेज में उस्तानी है। स्कीना चमक कर बोली। आयशा ने ये मकाम अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। हमारी गुजर बसर के लिए दुकानों का किराया काफी है। अरे छोड़ो, ये सब तो कहने की बातें हैं। स्कीना बुआ अपनी चादर संभाल कर उठती हुई बोली। अम्मी, आपको किसी के सामने सफाइयां देने की जरूरत नहीं है और ना ही ध्यान देने की। आयशा जल्दी से आगे बढ़कर बोली। आयशा, तुमने सुना स्कीना बुआ क्या बोल रही थी? अम्मी, आप अफसुर्दा मत हो, लोगों का काम है बातें बनाना। वो उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाती हुई बोली। अम्मी कहाँ हैं? उसने घर में दाखिल होकर छोटी बहन से सवाल किया। उस दिन जो लोग आपको देखने आए थे वही लोग फिर से आए हैं। उसे ये बात सुनकर बहुत हैरत हुई। लोग तो दूसरी बार आना गवारा नहीं करते थे, फिर ये खातून क्यों यहाँ दोबारा आई है? ये ख्याल जहन में आते ही उसके कदम खुद ब खुद कमरे की तरफ हट गए। वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अंदर से आने वाली आवाज ने उसके कदम रोक दिए। ये जहेज की लिस्ट है, आपने ये सारा सामान लाजमी देना है और हमारे यहाँ की रस्म है कि लड़के की माँ और बहनों को कोई सोने की चीज जरूर मिलती है और हमें 5 लाख रुपए कैश चाहिए। और एहसन की ख्वाहिश है कि शादी के बाद भी आयशा जॉब करे। असल में आसानी रहती है, घर में मियाँ बीवी दोनों कमाएं। खत्म करें आप लोग ये सौदेबाजी, वो गुस्से से कहती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या बदतमीजी है ये, कुछ शर्मो हया अदब लिहाज है? खातून चमक कर बोली। अरे शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, रिश्ता बनाने के नाम पर ये सौदेबाजी करते हुए। आयशा खामोश रहो तुम। सनोबर ने उसे खामोश कराना चाहा, लेकिन उसके अंदर तो गुस्से का तूफान मचल रहा था। शुक्र करो कि हम लोग रिश्ता करने आ गए, वरना कौन करेगा शादी तुमसे? न रंग न रूप। ना करे मेरे ऊपर ये एहसान, कम अज कम ये रिश्तों के नाम पर घटिया खेल तो मत खेलें। जा रहे हैं हम यहाँ से। ऐसी जुबान दराज लड़की कैसे कतर कतर जुबान चल रही है। खातून दोनों हाथ कानों को लगाती हुई वहां से निकल गई। अम्मी बस कर दे, अब खुदा के लिए बस कर दे। मेरे इन जुड़े हुए हाथों को देखे, रहम खाए मुझ पर। मेरे सब्र को अब और मत आजमाएं, मेरा जब्त जवाब दे चुका है। आयशा अपने दोनों हाथ स्नोबर के सामने जोड़ती हुई बोली। बेटा, मैं तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मेरी शादी, मेरा इन खुशियों पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, गरीब हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि लोग पैसे की लालच में मुझसे शादी कर लें। अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि इस मुआशरे की खूबसूरती के मयार पर मैं पूरा नहीं उतरती। वो नम लहजा में बोली। आयशा मेरी बच्ची, तुम दुखी मत हो। स्नोबर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। बस अम्मी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मुझे नहीं करनी शादी, आप अपनी कोशिशें खत्म करें। मुझसे और तजलील बर्दाश्त नहीं होती। मुझसे बार बार रिजेक्शन का दुख बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये लोग तो बहुत आराम से लड़की को रिजेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन कभी उसके दिल में झांकने की कोशिश नहीं करते कि उसके दिल पर क्या गुजरी, उसे कितना दुख हुआ। क्या हम लड़कियों का दिल नहीं होता? इज्जत तो नफ्स नहीं होती? आखिर कब तक अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करें? अम्मी आप तो समझे, आप माँ हैं। वो रोते हुए स्नोबर की बात काट कर बोली। आयशा तुम रो मत, मैं तो बस तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ। अम्मी, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा और मैं ऐसे ही खुश हूँ। ये बात सच है अम्मी कि इस दुनिया में मुखलिस लोगों की कमी है, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुखलिस लोग दुनिया में मौजूद हैं, खत्म नहीं हुए। कोई तो होगा जो मुझे मेरे सामने रंग के साथ कबूल करेगा, कोई तो रिश्तों के साथ मुखलिस होगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा। आयशा स्नोबर के गले लगकर रोती हुई बोली। ये बात हकीकत है कि दुनिया से मुखलिस लोग खत्म नहीं हुए, लेकिन ये हकीकत भी अटल है कि हमारे मुआशरे में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो रिजेक्शन का दुख बर्दाश्त करती हैं। रंग गोरा ना होना उनकी सबसे बड़ी खामी होती है और वो मुखलिस शख्स के इंतजार में सांस लेती रहती हैं और ना जाने कितनी दिल बर्दाश्ता होकर जिंदगी से मुंह मोड़ लेती हैं। ये रंग रूप तो अल्लाह ताला की देन है।